Hello everyone, today we will talk about creating a data frame from a text or CSV file. CSV stands for comma separated values. तो हम data frame कैसे बनाएंगे CSV file से. Now this is the part of the syllabus. Okay, so let me show it to you. So I'll take you to the notes. This is the notes I've got. The acronym, let me highlight it. CSV full form is comma separated values. Okay. ये किसको रेफर करता है? It refers to a tabular data. Suppose करो this is the data. I will just highlight it. Given in Excel, it has got 3 columns: role, NO, name, and marks. And this is the data we have got. Now, when we convert it to CSV, that is comma separated values. So basically, हम comma separated values में convert करेंगे, तो we write that in a plain text. That is, we write the text in a notepad. और हम कॉमा से सेपरेट करते हैं. आप देखो यहाँ पे जैसे एग्जांपल के लिए. सो लेट मी शो इट टू यू. सो व्हाट आई विल डू, आई विल गो टू डेस्कटॉप. यहाँ पे मैं राइट क्लिक करूंगा, देन आई विल क्लिक ऑन न्यू, देन आई विल क्लिक ऑन दिस टेक्स्ट डॉक्यूमेंट. ओके, देन लेट मी ओपन दिस टेक्स्ट डॉक्यूमेंट. अब मैं पहला फील्ड का नाम दे दूँ रोल एनओ, फिर मैंने कॉमा दिया, मैं दे दूँ नेम, फिर मैंने कॉमा दिया मार्क्स. मार्क्स के बाद आई एम नॉट गिविंग एनी कॉमा बिकॉज आई वांट ओनली 3 फील्ड्स और 3 कॉलम्स. रोल एनओ आई हैव गिवन एज नेम. नेम में मैं देता हूँ अमित. ओके, मार्क्स में आई गिव इट 87 फॉर एग्जांपल 2. देन रवि, मार्क्स में दे दूँ 56. 3 सुबोध, marks में let me give 78. So let's assume that we have got 3 values और हमारे पास 3 columns हैं या 3 fields हैं, roll, NO, name, marks. Now what I'll do, I have written this. मैंने सबको देखो कॉमा से सेपरेट किया है, लेकिन मार्क्स के बाद मैंने कॉमा नहीं दिया है बिकॉज मैं 3 ही फील्ड चाहता हूँ, इसलिए मैंने यहाँ पे 87 के बाद भी कॉमा नहीं दिया है. So if you go down as well, I have not given comma after 56. Okay, similarly it's 78 के बाद में. तो लेट मी सेव दिस फाइल. नाउ आई क्लिक ऑन फाइल देन सेव एज. ओके, जब आप सेव करोगे, ओके, मेक श्योर दैट यू गिव एनी नेम. जैसे मैंने माइक नाम दे दिया, डॉट CSV आप दोगे. यू कैन गिव एनी नेम. डॉट CSV एक्सटेंशन इज वेरी मच एसेंशियल बिकॉज ये स्पेसिफाई करेगा कि हमारा ये कौन सा है CSV फॉर्मेट में. तो मैं इसे सेव कर देता हूँ. ठीक है, आई हैव सेव दिस फाइल और लेट मी क्लोज दिस. Now let's see. अगर आप यहाँ माइक को देखो तो आप if you look at the file here, you will see that it has been saved in the Excel format. Automatically ये हो गया. तो मैं इसे राइट क्लिक करता हूँ. ठीक है, I'll do a right click here. Then I've got open with option. Okay, open with में मेरे पास 2 ऑप्शन है, एक Microsoft Office Excel and then we have got Notepad. So let me click on Microsoft Excel. Okay, see tabular data ये आ जाएगा. If I open in Excel, it will show that see I've got tabular data. Roll, NO, name, marks automatically columns बन गए और ये values आ गया हमारा. ठीक है, let me close this. ठीक है, तो इस लेकिन if I do a right click and open it through Notepad, तो ये CSV format में दिखाएगा. Let me show it to you. तो open with मैंने किया, I'll click on Notepad. Now let's see, it is showing in the CSV format. तो CSV फॉर्मेट आप समझ गए. नोटपैड में या टेक्स्ट एडिटर में हम टाइप करेंगे विल सेपरेट बाय कॉमास. नाउ देयर आर मेनी डिलिमिटर्स या सेपरेटर्स. हम लोग कॉमा भी दे सकते हैं, टैब दे सकते हैं, एट द रेट दे सकते हैं, बट आई एम नॉट गोइंग टू टॉक अबाउट दिस. आई एम गोइंग टू टॉक अबाउट ओनली वन सेपरेटर, दैट इज कॉमा. इसे मैं बंद करूँ. अब हम डेटा फ्रेम कैसे बनाएंगे. ठीक है, लेट मी सो व्हाट आई विल डू, आई विल जस्ट गो टू पाइथन. सबसे पहले हम क्या लिखेंगे, इंपोर्ट pandas spd. Okay, let me go to the notes again. Okay, let me go down. Okay, advantages क्या है कि CSV format is popular क्यों है, क्योंकि it is simple, compact, a common format for data interchange. It can be opened in spreadsheet packages like Excel. ठीक है, तो देखो यहाँ पे हमारे पास एक फंक्शन है read_CSV. What is the name of the function? read_CSV. और दूसरा फंक्शन we don't have to study, so I will not talk about this. read_CSV क्या करता है, ये CSV फाइल को, it reads the CSV file that is already created and converts that file to a data frame. Okay, let me go down, I'll show it to you.
This is the syntax. Read file path. हम क्या देंगे? df is equal to pandas dot read underscore csv. Then I give file path. So let me import pandas spd. मैं data frame का नाम दे दूँ. Let me give it as df1. I can give any name. Is equal to pd dot read underscore csv. Now अब जब भी read underscore csv whenever I will give it in small letters. ठीक है, फिर मैंने ये कॉमा दिया. Now there are so many arguments, पर हमें फाइल पाथ देना है, वो फाइल लोकेशन उस पाथ का. So what I'll do, I'll go to desktop. Let me check the location. हमने यहाँ बनाया है. Let me maximize the screen. Okay. तो ये देखो आप, यहाँ पे हम क्या करेंगे, माइक पे I will do a right click. Okay. I'll go to properties. Okay. Click on properties. So this is the location that I'm getting. मैंने क्या किया, कॉपी किया राइट क्लिक करके. I'll do a copy. Okay, I've copied this. This is the location where the file is saved. फिर मैं इसे मिनिमाइज करूँ. I'll go to Python और यहाँ पे इन्वर्टेड कॉमा देना, इट इज कंपलसरी. देन आई विल पेस्ट इट. कंट्रोल वी मैंने यूज किया, कंट्रोल वी पेस्ट किया मैंने. अब इसमें एक इम्पॉर्टेंट चीज क्या है, जब आप स्लैश दे रहे हो तो इसे बैक स्लैश है. आई रिप्लेस इट विद 2 फॉरवर्ड स्लैशेस. मैंने दिया 2. सिमिलरली मैं इसे करके 2 देता हूँ फॉरवर्ड स्लैश. फिर मैं इसे 2 देता हूँ फॉरवर्ड स्लैश. इसके बाद डेस्कटॉप के बाद अगेन आई विल गिव 2 फॉरवर्ड स्लैशेस. देन आई विल गिव द नेम इज माइक डॉट csv. मैंने ये किया. देन आई क्लोज द इन्वर्टेड कॉमा. ओके, माइक क्यों दिया, बिकॉज दैट इज द नेम ऑफ द फाइल. नाउ लेट मी हिट एंटर. नाउ df1 डेटा फ्रेम हैज बीन क्रिएटेड. तो यहाँ पे इफ यू नोटिस हियर, डिड आई यूज pd डॉट डेटा फ्रेम? मैंने pd डॉट डेटा फ्रेम नहीं यूज किया. व्हाई? बिकॉज आई वांट टू क्रिएट अ डेटा फ्रेम फ्रॉम अ csv फाइल. तो जब भी आप csv फाइल से अगर बनाओगे तो आप कौन सा फंक्शन यूज करोगे? रीड अंडरस्कोर csv. और वो csv जो हमारा फाइल है उसका पूरा लोकेशन देना होगा इन्वर्टेड कॉमा के अंदर. ठीक है, दिस थिंग वी हैव टू टेक केयर ऑफ. और 2 फॉरवर्ड स्लैश हमें देना पड़ेगा. वाई? सो दैट द फाइल पाथ इज read properly. अब मैं df1 को प्रिंट कराऊं. So df1 मैंने टाइप किया c. We have got the data. So we have created a data frame df1 by csv file. So it's very simple topic. ये भी है. It might ask you a question like what is the function which we use to create a data frame from a csv file. So the answer will be read underscore csv. सारा small letters में. File path में what do we give? We give 2 forward slash. Then we give inverted comma. This is what you have to keep in mind. So that's it for today. Thank you everyone for watching. I'm closing the session from my end.